Hello everyone, welcome to Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home and are doing well. As you all know, in our previous videos we have discussed about some basic concept of class 9th physics, chapter number 1, motion. So in today's video we are also going to deal with some more new concept of the same chapter, that is motion. So today's topic is graphical representation of the data. In this video we are going to deal first what is graph. We are going to do the introduction of the graph, then how it is plotted, what are the steps that are involved in the plotting of the graph, and how it is useful to us. We are going to deal all those things in the same video. So let's start with the first concept, that is graphical representation of the motion. Do you know why we need graph? We have all those methods, we have numerical methods, we have many things, because whenever we are looking the things in the form of pictures or in the form of graph, it makes our study easy. So to make our study easy, we need some kind of graphs. I think you have studied many kind of graphs in the your mathematics, like bar graph, many graphs are there. So in this we are going to discuss what is graph first. So it is a geometrical relationship between two quantities plotted on the x-axis and the y-axis. I have told you what are the quantities. Quantity means that anything that can be measured, like distance, time, okay, speed, velocity, acceleration, all the kind of quantities are available in the physics. So and you can also plot the graph between two different quantities. Like we have taken example over here, okay, so we have taken two axes. So for drawing a graph, if you want to draw a graph, then at least two axes are required by you. How many axes? Minimum two axes. Like we have taken x-axis here, over here, and we have taken y-axis over here. So these are also known as coordinate axes. I think you have studied about these axes in the mathematics very clearly. So right now we have just taken an example of general graph. In this we have plotted the number of overs in a match, okay, on the x-axis, and numbers of runs scored in a match on the y-axis. So this is the line which is curved, okay. The line, it is called as graph, and it is showing the relationship between the number of overs in a match and number of runs scored. So this is not linear graph, this is the curved graph, okay. This is not linear, you can say many graphs are coming out to be a straight line, curve, many kind of graphs are available. So in this we have a curved graph, okay, we have a general curve. So this graph represents the relationship between the number of overs in a match and number of runs scored. Clear? So next is graph consists of two kind of quantities. First quantity we are going to discuss, okay, the quantities which we are plotting on the graph can be classified into two parts. So first one is dependent quantity. You must understand what is dependent quantity, because this is the very important part of the graph. No teacher, mostly the teachers do not take the graph as a serious topic, but it is very important. Graphical study of motion is very important topic. If you are going to the higher studies like 11th and then 10th, either you are going to prepare for NEET, JEE, then you will analyze the importance of this concept. So please take this concept very seriously and watch the complete video, okay. So dependent quantity, the quantity which depends on other quantity is called as dependent. Dependent means which is depending on the other. Like if you are able to observe this graph, so in this we are checking here number of runs scored is depending on the overs. For example, if you are changing the over, like if we are talking about the first over, then the number of runs will be different. If the number of overs are 3, then the number of runs will be different. And if we are taking number of overs as 10 overs gone away, then the number of runs will be, because in each and every over we will score some runs. So that means number of runs scored are depending on the number of overs, and numbers of overs are not depending on anywhere, okay, they are not depending on any quantity. So they are said to be as independent quantity. I hope so the idea is clear. फिर से देख लेते हैं एक बार ग्राफ क्या होता है. ये क्या होता है, एक दो क्वांटिटीज़ के बीच का एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है, जिसको हम ग्राफ पेपर पे या पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या किया है, आपको क्या चाहिए, एक एक्स एक्सिस चाहिए और एक वाई एक्सिस चाहिए.
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को आप कैसे प्लॉट करेंगे? सिंपली आप, मैंने आपको बताया जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस होती है, उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट एज ओरिजिन। ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। क्लियर? अब हमने क्या किया है, दो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे, नंबर्स ऑफ ओवर इन अ मैच। यहाँ पे एक मैच है जिसमें ओवर्स कितने हैं वो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस प्लॉट किए हैं। यहाँ पे नंबर्स ऑफ रन स्कोर्ड हैं जो हमने कि पर्टिकुलर ओवर में, जैसे फर्स्ट ओवर में कितने रन्स आए होंगे, सेकंड ओवर में कितने रन्स आए होंगे, थर्ड ओवर में कितने रन्स आए होंगे। तो आपको क्या करना है, रिलेशनशिप प्लॉट करना है दो क्वांटिटीज़ के बीच का। तो जो भी रिलेशनशिप आएगा उसको पॉइंट्स की फॉर्म में प्लॉट करेंगे, देन पॉइंट को हम स्मूथ लाइन से, ये कर्व लाइन से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है? तो जैसे आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, जो भी डेटा होगा उसको प्लॉट करोगे, फिर जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे उसको आप कनेक्ट करोगे, चाहे वो कर्व लाइन हो सकती है, चाहे वो स्मूथ लाइन हो सकती है, तो आपको एक पिक्चर फॉर्म मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। आई थिंक यू हैव सीन इन द मैचेस, okay, if you are watching an IPL or any one day match, then they simply show the graph to you, how the overs, how the runs are scored, when the fall of wickets, they also give you the data, because it's very interesting. Picture study is very interesting. When we learn the things, then we learn faster. इसलिए जब भी हम चीज़ों को देखते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर पाते हैं। इसलिए आप देखो, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो बुक से तो आपको उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता। अगर आप एक वीडियो देख लेते हो तो आपके माइंड में सेव हो जाता है। इवन मूवीज़ में भी देख लो, है ना, बहुत सारी बायोपिक्स होंगी जो आप देखते हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशनल मूवीज़ होंगी जो आप देखते हैं। तो मूवीज़ में क्या होता है, जो भी चीज़ होती है, जो भी प्लेस होते हैं, जो भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब आपको मेमोराइज रहते हैं। तो इसलिए हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम मोशन को क्या करेंगे, पिक्चर की फॉर्म में स्टडी करेंगे। ठीक है? अब ग्राफ में हमारी दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। तो दो क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन होता है, एक होती है आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होती है आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड करे। ठीक है? जो किसी दूसरे पे डिपेंड करे। जैसे यहाँ पे जो रन्स हैं वो ओवर पे डिपेंड करेंगे। जैसे फर्स्ट ओवर हुआ, जैसे जैसे ओवर चेंज होंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ रन्स भी चेंज होंगे। ठीक है? बट अगर हम देखें कि नंबर ऑफ ओवर किसी पे डिपेंड नहीं करते, है ना, तो नंबर ऑफ ओवर्स किसी पे डिपेंड नहीं करते, तो वह कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। क्लियर है आइडिया? नोट कर लीजिए सारी चीज़ें अपनी कॉपीज़ पे, और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज हम। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सारा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ग्राफ में होता है, वो सारा कुछ स्टडी करने वाले हैं। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, आइदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्लियर है? ठीक है? जो डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। आई होप सो आइडिया इज क्लियर। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। That is independent quantity. Very very easy topic. So now let's take first independent quantity. Independent means free. Independent means free, which is not depending on any other quantities. So the quantity which do not depends on other quantity. I hope so idea is clear. For example, in the graph we have taken the number of runs and number of overs. Okay, the graph we have taken for the example earlier. So in that number of overs in the given graph, you can say in the given graph is independent quantity, is independent quantity. I
I hope so the idea is clear. Okay, so we have discussed about two types of quantities over here, dependent quantity and independent quantity. Dependent वाली क्या होती है, जो डिपेंड करती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था रन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ओवर्स पे, ओवर चेंज होंगे तो रन भी चेंज होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है आपकी, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, जैसे आपका नंबर ऑफ ओवर्स, तो नंबर ऑफ ओवर किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैच है तो नंबर ऑफ ओवर्स जो होंगे फिक्स्ड होंगे, ठीक है, कि फर्स्ट ओवर होना है, सेकंड ओवर होना है, थर्ड ओवर होना है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर है आइडिया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। इज इट क्लियर? सो प्लीज डू राइट द डेफिनेशन, आइदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। So let's move to our next topic, that is how to draw a graph. Our next topic is how to draw a graph. Just wait, that is very very important, and please take this, I am repeating again and again, please take this topic very seriously, because many of the students, they are not taking the topic seriously. That's why they are facing the problem in 11th standard and for in their foundation preparation as well. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को सीरियसली नहीं लेते हैं, ग्राफ है कैसे, कोई इतना एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सब नहीं सीरियसली लेते हैं, तो आगे उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए तो हम करेंगे हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, वेरी सिंपल, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। नाउ आई एम राइटिंग फर्स्ट स्टेप 1. Step 1, we will be doing the step wise study. That first step will be drawing the axis. What you will need, you will need minimum 2 axes to plot the graph of any two quantities. Okay, like first will be drawing of the axis, drawing of the axis. So what, okay, how can we choose the axis? We can simply choose the axis x and y. So draw x axis and y axis, y axis to plot the given data, to plot the given data मीन्स अगर आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सिस को ड्रॉ किया है, ये हमने एक्सिस को ड्रॉ किया है, सॉरी ये दो एक्सिस है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस को हम वाई बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, सो मिनिमम आपको कितनी एक्सिस चाहिए, यू नीड मिनिमम 2 एक्सिस। नाउ सेकेंड पॉइंट, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिन, आई हैव टोल्ड यू। सेकेंड स्टेप विल बी, व्हाट विल बी योर सेकेंड स्टेप, labeling of axis. Second step will be labeling of the axis, labeling of the axis. That means how can you label them? I have told you there are two kind of quantities, first one is independent, second one is dependent. So label x axis with x axis with dependent, sorry, independent and y axis with dependent quantity, with dependent quantity. Just wait. So how can we label the axis? So we are just labeling, so the quantity which is dependent, it is placed on the y axis, and the quantity which is independent, it is placed there on the x axis. So x axis will have independent quantity and this y axis will have the dependent quantity. I hope so the idea is clear. Which quantity is taken on the y axis? Dependent quantity. Which quantity is taken on the x axis?
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे? जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको ऑलवेज आपको एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट करना है। जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको आपको कहाँ प्लॉट करना है? वाई एक्सिस पे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है आपका? चूजिंग द स्केल। चूजिंग द स्केल। अब आपको क्या करना है? स्केल चूज करना है। ठीक है, जैसे आपने मैथ्स में जब ग्राफ ड्रॉ किए होंगे तो आपने स्कूल जो भी स्केल चूज करी होगी वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो वी आर राइटिंग ओवर हियर, चूज द स्केल अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, that will be suitable, you can choose. Okay, whatever is the suitable scale that you can choose by yourself. There is no need to worry about it. We can do whatever we want in the graph. Scale we can choose by ourselves. Okay, but we just check it out, whatever is the data given, so depending on the data we can choose the scale. So last fourth step and the final step is, just wait, final step is step number 4. Step number 4. What is the step number 4? Plotting of the data. Plotting of data. Plotting of the data. Now what? Plot the given values. Simply, just wait, actually the marker is working. Plot the given values. Plot the given values on the graph, and obtain intersection point. And join them with smooth or curve line, with smooth or curve, smooth line or curves. Just wait, smooth line or curve. So these are the 4 steps which we can follow whenever we are drawing a graph. जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करोगे। कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप 1 है ड्राइंग द एक्सिस। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक्सिस ड्राइंग करनी है। एक्सिस को ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है और वाई एक्सिस को। तो हम कौन से एक्सिस को यूज़ करते हैं? 2 ही एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पे हमने प्लॉट किया, ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर रखी है आपके लिए। सेकंड आपको क्या करना था? लेबलिंग करनी थी। लेबलिंग मतलब मार्किंग करनी है, कैसे कौन सी एक्सिस को कौन सी क्वांटिटी को किस पे प्लॉट करेंगे। तो आपको क्या करना है? डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, और इंडिपेंडेंट वाले को आपको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, राइट। थर्ड स्टेप इज चूजिंग द स्केल। So you can choose the suitable scale according to the given data. Whatever is the data given, so you can choose the data according. You can choose the scale according to your given data. जो भी आपको डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने 8th क्लास में किया होगा ना, 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे चूज़ करना है। ठीक है, फिर क्या है? प्लॉटिंग ऑफ द डेटा। जो भी डेटा आपको गिवन होगा सो प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के साथ साथ हम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्टेन करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन देखेंगे। अभी जब क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, एक जो डिपेंडेंट क्वांटिटी वाला एक्स और वाई वाला, उनको आप ज्वाइन कर दोगे। चाहे वो कर्व भी आ सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह से वेरी कर रहा है। डेटा का जो वेरिएशन होगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर कर्व के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेप्स of drawing the graph. So please just write down all the steps in your copy, and either you can do one thing, you can take the screenshot. I hope so the idea is clear. So let's move to the next and last concept. We are just taking an example to help you explain that how can we plot the graph on the graph paper. And as you all know, the graph is plotted on a graph paper, specially designed graph paper. आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक स्पेशल पेपर चाहिए होता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ पेपर। ग्रीन कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है, बहुत सारे कलर्स में आता है। मोस्टली ग्रीन आपने देखा होगा, बुक्स वगैरह में भी ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सो नाउ राइट द क्वेश्चन, दिस इज आवर एग्जाम्पल। Using the following data, using the following data, using the following data, draw displacement, draw displacement time graph, displacement time graph, using the following data, draw the displacement time graph. Now we are having a data over here, so let's draw the table first. Okay, if they are asking you to draw the graph, then they will give you the data. आपको डेटा गिवन होगा और आपको डेटा को यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, अभी देखते हैं कैसे हो सकता है ग्राफ, कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ हम, ठीक है। स्टेप्स में क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, एक कॉलम में आप लिखेंगे टाइम, टाइम को सेकंड्स में लेते हैं, और ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डेटा के मैंने नोट कर लीजिए, इस तरह से कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे हम, बहुत सारे कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जितने यूज़ में आएंगे उनको यूज़ करेंगे। 0 पे 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम भी 0, 2 है, 4 पे 4 है, 6 पे 4 है, 8 पे भी 4 है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर आपका 8 पे 4 के बाद 10 जब टाइम है तो 6 हो गया डिस्प्लेसमेंट, 12 जब टाइम है तो आपका 4 हो गया, और जब 14 टाइम है तो 2 हो गया, 16 टाइम है तो 0 हो गया। बाकी ये हमारे टेबल काम की नहीं है, तो उसको इरेज कर देंगे। ओके, सो राइट नाउ वी हैव टेकन अ क्वेश्चन दैट विल बी helping out in understanding the concept that what we have done till now, कि क्या हमने चीज़ें करी हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, बताया था मैंने। सबसे पहले आपको एक्सिस को ड्रॉ करना है। ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, राइट। ये वाली कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया था लेबलिंग करनी है, स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। लेबलिंग करनी है, एक टाइम क्वांटिटी है और एक डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है। टाइम वाले को आप कहाँ प्लेस करोगे, ऑलवेज आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे, क्योंकि टाइम कैसी है, टाइम किसी पे डिपेंड करता है क्या, टाइम डिपेंड नहीं करता, टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो वी आर जस्ट प्लॉटिंग दिस ऑन द डिपेंडेंट, सो डिपेंड लाइक डिस्प्लेसमेंट, वी आर प्लॉटिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट। We are labeling the axis by independent and dependent quantities. So हमने डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पे क्यों रखा है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। चलिए अभी प्लॉट एक्सिस अपने आप सुटेबल चूज़ करेंगे, लाइक ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16 मार्क कर लेते हैं। 2, ये 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड देन 16। डिस्प्लेसमेंट को भी मार्क कर लेते हैं। ये आपका लेट सपोज 2 है, ये 4 है, ये 6 है लेट सपोज, एंड ये 8 है। 8 से ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। 2 पे 0 पे तो 0 है, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर आपका 2,2 है, 2,2 प्लॉट करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, लेट सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है। आपको इंटरसेक्शन चेक करना है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन होगा 2,2, क्लियर है। 2,2 इंटरसेक्शन, फर्स्ट पॉइंट कौन सा प्लॉट करना है, 2,2, 2 एक्स एक्सिस पे 2, एक्स में भी 2 डिस्टेंस है, वाई में भी 2 डिस्टेंस है। नेक्स्ट 4,4 प्लॉट करना है, कहाँ पे आएगा 4,4, ये 4 है, 4 पहले एक्स में चलेंगे फिर वाई में, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 4,4। फिर देखते हैं 6,4 है, तो 6 एक्स में है और 4 है, ठीक है। तो 6 और 4 ये आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये, लेट सपोज ये हो गया आपका। फिर क्या है 8,4 है, 8 पे भी आपका 4 ही है डिस्टेंस, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। सो यहाँ पे प्लॉट करा हमने 2,2, यहाँ 4,4, यहाँ 6,4, यहाँ 8,4,
10 पे देखते हैं, 10 पे चेंज हो रहा है, 10 पे आ रहा है आपका 6, तो 10 पे देख लेते हैं 6 कैसे आएगा। ये आपका एक पॉइंट हो गया, लेट्स सपोज ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 10,6, 10 पे 6 हो गया, 12 पे चेक करते हैं, 4 आ गया, अगेन कुछ नहीं करना है आपको, ये 4 आ गया, ये 12 पे 4 आ गया, लेट्स सपोज ये हो गया आपका, क्लियर। 14 पे चेक करते हैं, 14 पे 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे आएगा, लेट्स सपोज 14 पे 2 आ गया, देन 16 पे आपका 0 हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आ गया। Now I think, is it clear how can we plot the data? Time is 0, then displacement is 0. No, here time is 2, then displacement is 2. 2 and 2. Intersection point is this. This is your intersection point. And then 4, we have plotted this. 6,4 this point, and 8,4 this point, and then 10,6 is this point, and then 12,4 this, and then 14,2 is this, and then last 16,0 is this. Now what we need to do, we need to simply just join these points either by the smooth line, either by the curve. आप स्मूथ लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, ज्वाइन करते देखते हैं कैसी लाइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इन सारी लाइंस को इरेज भी कर सकते हो, ठीक है। इनका कोई जॉब नहीं है, अब इनका कोई रोल नहीं है, तो इस सारे जो भी पॉइंट्स हमने लिए थे उनको आप इरेज भी कर सकते हो पेंसिल से। हालांकि मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं था ना, इसलिए इसके लिए करने के लिए ये सब किया था। जस्ट वेट, ठीक है। ये हम कर सकते हैं बहुत ईजिली, बहुत सिंपली करेंगे ये हमारा ग्राफ हो जाएगा डिज़ायर्ड, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं, है ना, अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं इनको। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो गया, दिस इज़ अवर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपली आपका ग्राफ हो गया। इज इट क्लियर? कैसे प्लॉट करेंगे अब, आई थिंक क्लियर होगा डेटा कैसे प्लॉट करेंगे, ओके। सो बहुत सिंपल है, ये आपका ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इज इट क्लियर नाउ? अभी कैसे ड्रॉ किया है, क्लियर हो गया सारा कुछ। पहले क्या करना है, एक्सिस चूज करनी है, फिर लेबल करना है एक्सिस को। कैसे लेबल करना है? डिपेंडेंट वाली को y पे और इंडिपेंडेंट वाली को x पे। फिर जो भी डेटा होगा उसको प्लॉट करेंगे। स्केलिंग अपने आप कर सकते हैं, जैसे मैंने 2, 4, 6, 8, 2 सेंटीमीटर्स का स्केल लिया है, आप ऐसे अपने आप भी चूज़ कर सकते हो। फिर जो भी डेटा है उसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। वो स्मूथ लाइन भी हो सकती है, कर्व लाइन। तो यहाँ पे ये ग्राफ है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर today's class. I hope so. If you like the video, then please hit the like button, and if you are new to our channel, then please subscribe to our channel, and please share the video as much as possible, because I need love and support of you guys. So thank you so much all of you once again. Thank you.